Now class 12 we'll start with this new topic biodegradable polymers. As the name indicates you can understand ये basically जो biodegradable polymers होते हैं ये biopolymers होते हैं. जितने भी आपके जो biopolymers हैं these biopolymers are coming in your this topic, that is biodegradable polymers, that you have to understand. Now what does they means and how this has been there, let's focus on it. Basically what we see that in these biodegradable polymers इसमें कुछ certain examples are there. जैसे for example polysaccharides comes in it, proteins come in it, ठीक है, nucleic acids come in it. So these are there, they go natural degradations by the action of microorganisms. ठीक है, तो जो बायोपॉलीमर्स बेसिकली होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, दे आर easily degradable by your microorganisms that are present and as such as bacteria. So these particular biodegradable polymers are decomposed, इनमें से जो कोई भी ले लो ये easily it is decomposed by microorganisms. Now what type of microorganisms, that is important. So bacteria are there, this you must be remembering in your biology concept. Fungi, algae, so these all come in it, right? This is the case of biodegradable polymers. So they are means that na, after a certain period of times these particular with the certain biological systems or biological processes these particular biodegradable polymers get decomposes. ठीक है, इवन मतलब जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाते हैं तो भी ये डिग्रेडेबल हो जाते हैं, तो दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन प्रॉब्लम. दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रिफर टू द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ठीक है ना, पहले जो पॉलीमर्स पढ़ते थे दे वर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, तो दे वर सिंथेटिक पॉलीमर्स, है ना. एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव दिस टेंडेंसी टू, दे आर नॉट एट ऑल बीइंग डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो टू एक्सेप्ट दैट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है ना, क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट करते थे. अब जैसे पहले की आपने याद हो कि प्लास्टिक्स वगैरह जो यूज़ होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स जो होती थी, बिस्लरीज वगैरह, वो और भी बहुत से प्लास्टिक्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होती है अगर वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए भी अगर आप उन्हें छोड़ दें, दे विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड, दे विल बी नेवर बी बायोडिग्रेड, दे विल बी नॉट एट ऑल डिकम्पोज बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना. तो एक बड़ा इशू बन गया था. इसीलिए क्या हुआ कि भाई आपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का कॉन्सेप्ट आया, जिससे व्हाट हैपन कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्वाइट केपेबल ऑफ डिकम्पोजिंग दीज polymers, and that is very useful for your environment, and they are not at all causing any pollutions problems or any issues in the environmental processes, and it remains ineffective also. ठीक है, इसीलिए biodegradable polymers non biodegradable polymers से ज़्यादा बेटर होते हैं. तो दूसरा एक नाम आता है, देखो इसमें भले ही हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा हमें ये चीज़ ये याद होनी चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं. दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल, तो जो ये डिकम्पोज हो जा रहे हैं ये नहीं होंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना. नाउ लेट्स फोकस ऑन द मेन पार्ट, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स. Now let's come to your biodegradable polymers, and you can either be classified them in natural polymers or in synthetic also. ये ज़्यादातर एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स होते हैं, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट classes of biodegradable polymers. So what I have written that these are the aliphatic polyesters are one of the most important class of biodegradable ठीक है. वी हैव टू एग्जाम्पल्स. देखो वैसे तो बहुत सी क्लासेस होती हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसे क्यों पढ़ें. ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन इट. सो आई एम राइटिंग डाउन द नेम, देन आई विल टीच यू हाउ यू हैव टू फोकस. These are the different biodegradable polymers: PHBV,
पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को डैश बीटा हाइड्रोक्सी वैलीरेट and polyglycolic acid and polylactic acid nylon dash 2 dash nylon dash 6. These two examples are there in a course, but this second one is not there in our course. In ISC we are not having this part, these twos are there, but ये तीनों examples इस category में आते हैं, so I have written it. So let's start with the first one and we'll focus on it, what is the monomer units and what is being there in it, how they are connected. अब देखो मैंने starting में लिखा था यहाँ पे they are aliphatic polyesters. तो basically whenever they will link up together they will show the ester linkage, so we'll see that also. Now remember when they will give you this example, they will give you this thing PHBV. They will not give you this, they will not write this name because this particular name is holding your monomer units, so they are not they will not help you out to give you this name because it has the monomer part. So let's focus on this. Is basically a copolymer first thing, and it is a polymer of these two things. यहाँ पे दो नाम्स आपके आ रहे हैं, एक ये आ रहा है हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और and the second name is this thing hydroxy valerate. Now one more thing, it is a copolymer and it is been there is a connectivity of it. ठीक है, कोपॉलीमर होने की वजह से इसको थोड़ा ध्यान देख के चलो, इसमें जो मोनोमर यूनिट्स आपकी बन रही हैं, वन इज़ दिस थिंग, यहीं से आप लिख लीजिए हाइड्रोक्सी. देखो ब्यूटाइरेट जो है आपका, ये बेसिकली आपका ब्यूटोनिक एसिड से रिलेट करेगा. तो देखो कैसे होगा, आप 3 लिखिए पोजीशन, हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड. ठीक है, एक मोनोमर यूनिट ये है और दूसरा मोनोमर यूनिट आपका है 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. ठीक है, ये मोनोमर यूनिट्स इस तरह से प्रेजेंट होगी, कनेक्ट होगी कि इनमें एस्टर्स लिंकेज जो है वो आपका दिखेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट एंड वील फोकस हाउ इट इज़ बीन देयर. चलो पहले फॉर्मूले बनाते हैं. ठीक है, तो पहले ब्यूटोनिक एसिड लिख लो क्योंकि ये तो तुम्हें आता है लिखना, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सी को हम कहाँ अटैच करें. तो पहले हम अपने 4 कार्बन एटम्स को लगाएंगे. ठीक है, और 4 में जो लास्ट वाला कार्बन एटम है उस पर हम COH ग्रुप लगा देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोजन से. और थर्ड पोजीशन, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये फर्स्ट पोजीशन में आएगा. यहाँ से आप नीचे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा OH ग्रुप भी लगा है क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप इज़ बीन अटैच टू द थर्ड ग्रुप. ठीक है, अब तुम इसमें हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो. यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया. अब ऐसे ही ये इस वाले को भी लिखो. यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स होंगे, लास्ट वाले में आप ये लगा दीजिए, और थर्ड पोजीशन में 1 2 3 4 5 है ना. तो थर्ड पोजीशन पे आपने अपना OH ग्रुप भी लगा दिया. तो यहाँ 1 2 3 है ना, ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दी OH. अब आप बैलेंसिंग करिए कार्बन की. तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको याद रखना है, यहाँ CH2 आ जाएगा, CH आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा. सो दिस वे यू कैन राइट. नाउ यू हैव टू कनेक्ट देम. कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब कनेक्टिविटी कैसे करें वो हमें देखना पड़ेगा. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस मैनर, चेंज देयर लोकेशंस और पोजीशंस. कैसे, थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिए. यही चीज़, ये तो आपने अभी बनाना सीखा है दोनों को, लेकिन लिखने के लिए बुक्स में तो देखो बेटा ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन जब आप मेन रिजल्ट इसका लिखोगे तो यू विल नेवर बी अंडरस्टैंड. तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम याद करना वैसे ही, लेकिन अंडरस्टैंड इट हाउ यू कैन राइट डाउन. यही जो ऊपर चीज़ तुमने लिखी है इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दो. कैसे मोल्ड कर दो, CH है जो आपका, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा दो क्योंकि एक ही कार्बन पर है ना, यहाँ लगा दो OH. ठीक है, CH2. ठीक, और यहाँ पे C चाहो तो तुम C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे, मतलब ये जो फॉर्मूला है तुमने इस तरह से लिख दिया. अब तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह से आसानी समझ में आएगी, मतलब रिएक्शन समझ में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट कंडीशन को भी लिख लो, वो भी तुम्हारे लिए आसानी रहेगी समझने में. आई थिंक दिस पार्ट इज़ क्लियर टू. नाउ फोकस ऑन दिस. इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये पोर्शन ऊपर रखा है, ये नीचे लिया है. कैसे, उसको भी देख लो तो थोड़ा आसानी रहेगी. जो ये पोर्शन हमने यहाँ लिखा है इसको ऐसे करो, यहाँ लिख लो CH. ठीक है, और ये जो OH ऊपर लिखा है इसको तुम OH ऐसे लिख दो. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना.
यहाँ से इसको चेंज करो, CH को यहाँ लिखो, OH को साइड में लिखो, और जो ये इसकी रिमेनिंग पोर्शन इनको नीचे लगा दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा CH2 CH3 लिखने में, क्योंकि आंसर जब आप लिखोगे आपको ऐसे ही होगा, फिर आप परेशान होंगे। अब ये वाला पोर्शन बचा CH2, और ये आपका फिर वही C डबल बॉन्ड O और OH, तब आप समझ पाओगे जो आपका मेन आंसर आएगा। अब आप कनेक्टिविटी देखो क्या रहेगा, देखो हर जगह पे कनेक्टिविटी, ये दो पहले इन दोनों को जोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ CH है, CH3 है, अभी इसे छोड़ो, क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा ये मैं बाद में बताऊँगी पोर्शन। CH2 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखो, यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपका वाटर जो है, इस पोर्शन से वाटर आपका निकलेगा। तो जब वाटर निकलेगा तो आपके पास 2 H गायब होंगे और एक आपका ऑक्सीजन गायब होगा, ठीक है। अब ये कनेक्टिविटी क्या आ जाएगी आपकी, सिंगल ऑक्सीजन की, ठीक। बाकी क्या बचा, CH, ये नीचे रहा CH2 CH3, ये क्या रहा CH2, ये क्या रहा C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर जो ये है, इसके साथ यही वाला मॉलिक्यूल तो यहाँ लगेगा, ये तो पेंटोनोइक एसिड का है फॉर्म, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड है, तो इसके बगल में कौन लगेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड, फिर वाटर निकलेगा इन दोनों के केस में, इसीलिए मैंने ऐसे लिखे हैं रिएक्शन। इधर के केस में ये मैंने क्यों तुम्हें बताया कि यहाँ से फिर यहाँ बगल में आपका 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो O बचेगा, ठीक है, H हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी आपको ध्यान देना है कि ये OH पूरा हट जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में से, ठीक है, बेसिकली ऐसे निकलता है, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि फिर बगल में ब्यूटोनिक एसिड वाला ही फॉर्म लगा होगा, तो निकल जाएंगी सारी चीज़ें। अब बाकी क्या बचा आपका, आपको वही चीज़ें हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लगाइए, इसको n लगाइए, जब यहाँ n लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी n लगा दीजिए, यहाँ पे भी n। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस वे, आई हैव टॉट यू हाउ यू कैन गेट दिस आंसर, बट व्हेन यू राइट डाउन योर मेन रिएक्शन, तो आप बेसिकली इन दोनों कंपाउंड्स को जैसे ही लिखें वैसे ही लिख देना, और ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझा रहे हैं, दैट्स वाई आई एम राइटिंग, नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, दे वांट द मेन रिएक्शन, दैट इज़ दिस। आप ये दोनों रिएक्टेंट्स को लिखिएगा, यहाँ लगाइएगा प्लस साइन मजे से, एरो लगाइएगा, और फटाफट ये आंसर लिखिए, यहाँ तक कि पोजीशंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए करा जाता है। व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो, दैट्स वाई आई वांट कि यू शुड अंडरस्टैंड ईच द स्टेप हाउ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज फॉर्म। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे आपने अटैचमेंट कैसे करा है। सो दिस वे जस्ट चेक इट आउट, ऑल द बैलेंसीज ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड और नॉट, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देके चलना। दिस इज़ द केस हाउ यू हैव बीन फॉर्म दिस PHBB इज़ बीन फॉर्म, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके मोनोमर्स यूनिट्स हैं, इन पर फोकस करना। ये काफ़ी बैक्टीरियल बायोडिग्रेडेबल होता है। Now it is used, they uses in specialty packaging and orthopedic devices and control drug release में भी यूज़ करा जाता है। अब इसमें एक चीज़ बात है जो शुरू में मैंने बताया था, आई टोल्ड यू दैट दे कंटेन्स द एस्टर लिंकेज। नाउ व्हाट इज़ द एस्टर, अब देखो यहाँ पे तुम्हें कहाँ पे एस्टर लिंकेज दिख रहा है, ये देखो, ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा एस्टर लिंकेज है ना, यही तो होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एस्टर लिंकेज आ जाता है, इसको आप ध्यान देके चलना कि कैसे आप ना फॉलो करें। और नेक्स्ट पॉइंट इज नायलॉन -2 नायलॉन -6। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। इट्स ऑल्सो अ कोपॉलीमर, इट इज़ अ पॉलीएमाइड होता है, इसमें दोनों मोनोमर यूनिट्स डिफरेंट है, ग्लाइसिन है, अमीनो कैप्रिक एसिड है इसमें, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख के चलिए कि पहले इनका फॉर्मूला देखो, सब वर्ड्स नए बेटा, थोड़ा स्टार्टिंग में तो लर्न करना ही पड़ेगा। ग्लाइसिन जो होता है वो बेसिकली CH2, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक NH2 ग्रुप लगा होता है, ठीक है, अमीन ग्रुप, ठीक। अब अमीनो कैप्रिक एसिड जो होता है, नाम जैसा है तो एसिड तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ मिथाइल ग्रुप है 5 टाइम्स का लगा हुआ है, और यहाँ पर अमीनो है तो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ इसका फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों को आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, दोनों में NN लगाइए, ये तो लगाना मस्ट है। अब इनकी कनेक्टिविटी बैठाइए, कनेक्टिविटी इन द पार्ट हाउ दे कैन बी कनेक्टेड। सो वी आई हैव रिटन द सेम थिंग्स, ये यहाँ से हमने एज इट इज़ अटैच करा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है ना, तो इसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स फोकस ऑन इट। देखो OH यहाँ से निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। तो हाउ इट इज़ बीन व्हेन दीज थिंग्स विल बी रिमूव, यू गेट CO, you get NH is remaining क्योंकि one of the H is been attached over here to water is been removed, ठीक है। अब ये वापस वैसे ही रहा आपका CH2, ठीक है, whole 5 is been there,
यहाँ से आपने बॉन्ड्स यहाँ अटैच करे और ये यहाँ पे बेटा यह COH लगा देना, ठीक है। ठीक, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स पे इतना कर लो यहाँ से यहाँ तक, और ये पोर्शन जो है वो बेसिकली आपका N लिखोगे आप, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ होती है आपकी, ये जितना आपका मैंने लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे मेरा पेज छोटा है तो यहाँ लगा लेना COH। ये पूरी चीज़ जो आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी जो आपने नाम लिखा हुआ है नायलॉन -2 नायलॉन -6। ये मत सोचना नायलॉन 2 नायलॉन 6 अलग लगी, एक पूरी चीज़ अभी बता दिया आपको कैसे आप बनाओगे। वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें हमेशा निकलते हैं, सो 2n-1 एंड वाटर, ठीक है। दिस वे यू कैन फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल्स ना। ये देखो ये चीज़ क्यों लिखी गई है, क्योंकि बेसिकली यहाँ देखो यहाँ एंड्स जो है वो 2 एंड्स हैं, अगर देखा जाए, लेकिन वाटर तो खाली एक ही निकल रहा है, इसीलिए। अब इसकी जैसे इंपॉर्टेंस है, यूजेस हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, तो हमेशा याद रखना मेडिकल जितने भी गुड्स होते हैं, मेडिकल गुड्स है, उसमें ये यूज़ करा जाता है, ठीक है। यूजेस बुक्स में ज़्यादातर नहीं दिए रखे हैं, तो यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। अब अमाइड्स जैसे, क्योंकि अमाइड लिंकेज इसमें हो रहा है, तो अमाइड लिंकेज आपको कहाँ दिख रहा है, ये है, ये पोर्शन जो है आपका, ठीक है। ये बेसिकली आपका अमाइड लिंकेज को इंडिकेट करता है, ठीक। मैंने अंडरलाइंस लगाए रखे हैं, प्लीज़ व्हेन यू आर राइटिंग योर इक्वेशन डोंट राइट दीज लाइन्स इन इट। नाउ दिस मच we have completed and our course is finished of polymers. This chapter is entirely finished and we have covered it. Important chapter है, 100% question will comes, either uses, either monomer units and structures of the monomer units, preparations. These are the common, you can say, the questions that is been asked. इसके अलावा कोई तीसरा नया क्वेश्चन नहीं आता। जितना इसमें मैंने नोट्स आपको समझाया है, इससे ज़्यादा आप करके भी मत जाइएगा। नोट्स आई हैव ऑलरेडी सेंड यू बिफोर हैंड, सो लर्न फ्रॉम दैट नोट्स एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर यू कैन सी माई वीडियोज़ एंड दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। विल जस्ट टेक अप विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।